Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा सिविक्स का चैप्टर था ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट सिविक्स का अभी तक कोई रिवीजन वीडियो नहीं आया है। तो रिवीजन आज हम सिविक्स का करने वाले हैं, जिसमें मैं सिविक्स का जो चैप्टर है पूरा शुरू से लेकर एंड तक आपको लाइन बाय लाइन समझाने वाली हूँ। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी और कुछ जो एनसीईआरटी के हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। काफ़ी इजी चैप्टर लगेगा आपको ये, ठीक है। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, अगर यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो है ना, आंसर तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेप बाय स्टेप we work out the meaning of terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of democratic form of government. After going through the chapter, we should be able to distinguish between a democratic form of government from an undemocratic form of government. Towards the end of this chapter, we step beyond the minimum objectives and introduce a broader idea of democracy. Democracy is most prevalent form of government in the world today and is expanding to more countries. But why is it so? What makes it better than other forms of government? That's the second big question that we take in this chapter. So dear students, तो ये सारे तो कुछ क्वेश्चंस हैं और ये सारी चीज़ें इन्होंने खाली ओवरव्यू में बताई हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग क्या क्या चीज़ों में डिस्टिंग्विश करने लग जाओगे और क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये तो खाली ओवरव्यू है। दे हैव जस्ट टोल्ड अस दैट व्हाट वुड वी एबल टू डू आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर और what will be our understandings after reading this chapter. Okay, so let's move on to next part, what is democracy. बट ये देख लेना ओवरव्यू, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ओवरव्यू में, जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या। एंड योर एनसीईआरटी बुक हैज गिवन so many examples to understand all of these, so we will quickly cover. So you have already read about different forms of government. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic government. तो डियर स्टूडेंट, आपने डेमोक्रेसी ऐसा तो चीज़ है नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। यू हैव ऑलरेडी रेड डेमोक्रेसी so many times in your previous classes like 6th, 7th and I think 8th also. So in this chapter also we are going to learn about democracy. Okay, let's see what is democracy and why democracy, why we need democracy. Okay, so why define democracy. Before we proceed further, let us take some note of an objection made by Mary. She does not like the way of defining democracy and wants to ask some basic question to her teacher Matilda Lingdo. Responds to her questions as other classmates joins the discussion. Mary: Ma'am, I don't like this idea. First, we spent time discussing democracy and then we wanted to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then examples? Lingdo: Ma'am, I can see your point. But that now how we reason in everyday life. That is not how we reason in everyday life. We use words like pen, rain or love. Do we have to wait a do we have to wait a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using words that we understand its meaning. Mary: But then why do we need definitions at all? Lingdo: Ma'am, we need a definition only when we come across difficulty in using of word. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle, cold burst, and etc. The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purposes, because very different kinds of government immense to call themselves democracy.
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैरी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछती है कि मैम वाई टू डिफाइन। वो पूछते हैं कि मैम सबसे पहले हमने डेफिनेशन ही देख ली होती, वाई वी सी एग्जाम्पल्स, है ना। तो डियर स्टूडेंट लिंगडो मैम बताती है कि डियर स्टूडेंट, आप एवरीडे लाइफ में देखो, एक बच्चा चलना सीखता है, अब उसको पता थोड़ा ना होता है कि चलने की डेफिनेशन क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सिर्फ चलता है। एंड डेट इज हाउ वी यूज वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ। आप लोग खुद देख लो, आप पेन यूज करते हो, एवरी डे यू आस्क पेन फ्रॉम योर फ्रेंड टू जस्ट राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। डू यू हैव टू सीक फॉर डेफिनेशन बिफोर यू यूज देम? नो, राइट? So you directly use them. You don't have to wait for definition. Okay, our friend will tell us definition first for pen and then we will use it. You directly use it, है ना। So we don't need definition. We need definition then only use it जब हमें किसी चीज़ को different करना हो, differentiate करना हो। Suppose मान लीजिए साइंस में आप लोग जानते हो रेन क्या होता है, लेकिन जब भी आपको रेन को हेल से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, यानी कि आपको दोनों में अंतर बताना होता है, दोनों में क्या अंतर है ये बताना पड़ता है, तब आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हो, है ना। ऐसे ही डिफाइन तो नहीं करते हो। यू हैव टू डिफाइन द थिंग ओनली देन व्हेन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विथ समथिंग, राइट। लाइक अगर आपको पेन को जो है ब्रश पेन से डिफ्रेंशिएट करना है, तो यू हैव टू डिफाइन पेन ऑल्सो एंड यू हैव टू डिफाइन ब्रश पेन ऑल्सो। सिमिलरली डेमोक्रेसी को हमें डिफ्रेंशिएट करना है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो हम लोग को उनकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो अपने को डेमोक्रेसी बताती है, बट इन रियलिटी दे आर नॉट, है ना। सो लेट अस रीड फर्दर। सो राइट बैंक why but why do we have to need to work on the definition the other way you quoted Abraham Lincoln to us? Democracy is the government of the people, by the people, and for the people. So this was the definition given by Abraham Lincoln. What was this? This was the democracy is of the people, by the people, and for the people. Of the people means लोगों के लिए, ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की है, लोगों द्वारा बनाई गई है ना। बाय द पीपल मतलब क्या हुआ, क्या कहते हैं, बाय द पीपल यानी कि लोगों द्वारा। ऑफ द पीपल मतलब होता है डियर लोगों की। फॉर बाय द पीपल यानी कि लोगों द्वारा बनाई गई है, और फॉर द पीपल यानी कि लोगों के लिए है। तो यहाँ पर डियर इसका मतलब ये है, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन गिवन बाय अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट इज Lingdo ma'am. I'm not saying we need to change it. I too find this definition very beautiful. But we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. Yolanda. Yolanda is saying, Ma'am, can I suggest something? We don't need to look for any definition. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia. In Greek, demos means people and kratia means rule. So democracy is ruled by people. This is the correct meaning. Where is need to debate? सर इंस्टेंट यहाँ पे जो है, पहले तो जो है बताते हैं कि जो डेमोक्रेसी है अब्राहम लिंकन द्वारा वो कोटेड की गई है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। और फिर फर्दर जब कन्वर्जेशन चलती है तो लिंगडा मैम कहती है कि भाई लेकिन हमें देखना पड़ेगा ना, हम किसी चीज़ को ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। वी हैव टू लुक फॉर समथिंग, है ना, डेफिनेशन। तो योलांडा कहता है कि मैम वाई नीड टू डिबेट, हमें तो पता है कि जो डेमोक्रेसी शब्द है वो दो शब्दों से बना है, डैमोस और क्रेटिया। डैमोस का मतलब होता है, क्या कहते हैं आपका, डैमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। सो इसका मतलब पीपल्स रूल, सो वे नीड टू डिबेट। So Lingdo ma'am कहती है, this is also very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not always work. तो अब लिंगडो मैम न्यूस्टन ये कहना चाहती है कि हमेशा ये चीज़ वर्क नहीं करती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर्स क्या है, एक समय में कंप्यूटर को सिर्फ कंप्यूटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था, फॉर सर्टेन डिफिकल्ट कैलकुलेशन वी यूज देम, बट नाउअडेज कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एवरीथिंग। What are those things? For gaming, for playing songs, for listening to anything, for watching videos, watching movies, and whatnot. So today the meaning of computer has evolved over the period of time. So this means that हर एक शब्द के लिए स्टूडेंट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है इट्स मीनिंग गेट चेंज। डेमोक्रेसी की मीनिंग कभी कुछ और थी, कभी वो इवॉल्व हुआ, उसकी डेफिनेशन कुछ अलग हुई, है ना। So Mary is saying, ma'am, so basically you are saying that there is no shortcut or to our thinking about the matter ourselves.
वी हैव टू थिंक अबाउट द मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। तो ये है मेरी समझती है इस पूरी कन्वर्जेशन से। तो लिंडा मैम कहती है यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विथ इट हाउ। तो डिस्टर अब आते हैं सिंपल डेफिनेशन में। अभी तक हमने कन्वर्जेशन पढ़ी 10 मिनट में, अब नेक्स्ट आता है सिंपल डेफिनेशन। लेट अस गो बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी। One simple factor common to all democracy is the government is chosen by the people. So we could just start with a simple definition. Democracy is the form of government in which the rulers are elected by people. ये आपकी simple definition है। बट इस डेफिनेशन में अभी जब हम डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको और भी ज़्यादा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। This definition allows us to separate democracies from the other form of government that are clearly not democratic. The army rules of Myanmar were not elected by people. Those who happened to be in control of army became the ruler of country. अब dear student, पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब there are many types of government dear student. मिलिट्री रूल होता है गवर्नमेंट का, डिक्टेटरशिप्स होती हैं, और आपका साथ ही साथ मोनार्की होती है ना। जो म्यांमार में कंडीशन थी वो थी आपकी मिलिट्री रूल की। अब डिस्ट्रिक्ट कभी कभी क्या होता है, पूरा जो स्टेट होता है वो मिलिट्री पावर की वजह से मिलिट्री उसमें कंट्रोल करने लग जाती है, तो ऐसी गवर्नमेंट को मिलिट्री रूल ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा अब नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है कि डिक्टेटर्स, अच्छा नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है पीपल हैड नो टू से इन दिस डिसीजन। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट, चाइले आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, अब देखो पिनोचेट जो डिक्टेटर्स होते हैं चाइले में, ये भी चाइले इज ए कंट्री, उसमें डिक्टेटर एक ऐसा इंसान होता है जिसके हाथ में ही सारी पावर होती है, जो सबको कंट्रोल करता है, जिसको जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, लोग कुछ भी करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उसके अपोजिट बोलेंगे, लोग उसके अगेंस्ट बोलेंगे, ही विल डायरेक्टली गो एंड अरेस्ट देम, है ना, या फिर ही विल जस्ट से दैट अरेस्ट देम, और ही विल मेक सम लॉज रिगार्डिंग दीज ऑल थिंग्स, है ना। तो डिक्टेटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने हाथ में पावर रखते हैं और अपने हाथ से सब लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, है ना। दिस ऑल्सो एम्प्लाइज टू मोनार्कीज। मोनार्कीज में क्या होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट, इसमें जो है किंग होता है और किंग का ही हेरिडिटरी रूल चले जाता है। इसका मतलब जो किंग के रिलेटिव्स नहीं है या फिर किंग की फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, उनका जो है वो कभी राजा बन ही नहीं सकते, है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर। So the kings of Saudi Arabia rule not because people have chosen them to do so, but because they happen to be born in the royal family. क्योंकि वो उसी फैमिली के जो है कहीं ना कहीं उसी फैमिली में चले जा रहे हैं। हेरिडिटरी रूल इज गोइंग ऑन। द सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट. It reminds us that the democracy is people's rule, but we need to use this definition in an unthinking manner. We would end up calling almost all government that holds election a democracy. क्योंकि जैसे इसमें क्या लिखा है इस डेफिनेशन में, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where rulers are elected by the peoples. अब देखो जैसे ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इलेक्शन कराती हैं, क्या सारी कंट्री जो इलेक्शन कराती है उनको हम डेमोक्रेसी कह देंगे? ऐसा तो नहीं है। अभी हम फीचर्स पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगा, है, वी विल अंडरस्टैंड मोर nicely. ठीक है, so we would end up calling almost every government that hold election a democracy. That would be very misleading, as we shall find out in chapter 3. Every government in the contemporary world wants to be called democracy, even if it is not. So that is why we need to carefully distinguish between the government that is democracy and that pretends to be one. इसलिए ये सब जरूरी हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे तो जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं भी है वो भी चाहेगी कि भाई हम भी डेमोक्रेसी है, नहीं हम भी डेमोक्रेसी है, वो भी चाहेगी अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना, बट इट इज़ नॉट राइट, रियलिटी में वो नहीं है। ठीक है, सो वी कैन डू दिस बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. So we will read out some of the features of democratic government. So let us move on. So features of democracy. So this is a very interesting one. इसमें हम लोग बहुत सारी कहानियाँ पढ़ेंगे dear students. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which rulers are elected by people. ये तो हमारी simple definition थी जिससे हमने start करा था. ठीक है, these raises many questions. ये जो questions इधर आए हैं ना features of democracy, ये सारे question exam में आ सकते हैं. Please इनको भी अच्छी तरह prepare करो और जो overview में आए थे उनको भी. ठीक है, who are the rulers in this definition?
Which officials must be elected for government to be called democracy? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? What kind of election constitute a democratic election? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? Who are people who can elect the rules or get elected by rulers? Should this conclude every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? Finally, what kind of form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in democracy? Or must be democratic government function with some limits? Is it necessary for democracy to respect some rights of citizens? Let us consider each of these questions with the help of एग्जाम्पल्स. तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, 4 क्वेश्चन जो इन्होंने लाइन वाइज पूछे हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएंगे 4 फीचर्स में. इन फीचर्स को ध्यान से पढ़ो, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशंस. सो मेजर डिसीजंस आर इलेक्टेड बाय लीडर्स. मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, इसका मतलब है दैट मेजर डिसीजन विल बी टेकन बाय दोज लीडर्स हु आर इलेक्टेड. So dear student, I am taking a sip of water. I want you also to take water so that you will be hydrated. Okay. Yes, dear students. So there is a beautiful story which is given in your book. So we will quickly read that story and we will understand what is the first feature of democracy. So major decisions by elected leaders से तो आपको ये पता चल ही रहा होगा कि major decision उन लोगों के द्वारा लिए जाते हैं जो कि जिनको पीपल इलेक्ट करते हैं, यानी कि जिनको लोग इलेक्ट करते हैं. So in Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew the democratically elected government and declared himself chief executive of the country. Later changed his designation to president and in 2002 led a referendum in country that granted him 5-year extension. Pakistani media, human rights organization and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assembly. The work of civilian cabinet is supervised by National Security Council, which was dominated by military officers. After passing the law, elections were held to the national and provincial assembly. So Pakistan has had elections. Elected representatives have some powers, but the final power rested with military officers and General Pervez Musharraf himself. ठीक है, तो अब देखो इसमें मैं समझाती हूँ आखिर ये परवेज मुशर्रफ जो इंसान है इसने क्या क्या चीज़ें करी और कितना जो है इसने ढोंग दिखाया डेमोक्रेसी का. लेट मी टेल. सबसे पहले जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, देखो पाकिस्तान को भी जो है इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, है ना. 14 जुलाई 1947 इफ़ आई रिमेंबर वेरी क्लियरली. तो डियर उस समय क्या हुआ, उस समय तक जो है पाकिस्तान बहुत सालों तक जो है डेमोक्रेटिकली अच्छी तरह फंक्शन कर रही थी. बट 1999 में क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे इन्होंने जो है मिलिट्री कूप जो है कहीं ना कहीं लेड किया. मिलिट्री कूप मतलब कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है हमला कर दिया और इन्होंने जो प्रेसिडेंट था उससे मतलब थोड़ा ऐसे नहीं करते, थ्रेटन करते हैं कि भाई हम तुम्हें मार देंगे तुम हट जाओ, तो ऐसे करके प्रेसिडेंट को हटा दिया और प्रेसिडेंट को जेल में डाल दिया था बहुत समय के लिए. ठीक है, और उन्होंने डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको जो है थ्रो कर दिया और क्या कर दिया, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बता दिया कंट्री का. और थोड़े समय बाद अपने आप को क्या बोल दिया, प्रेसिडेंट. फिर उसके बाद 2002 में, चलो इतना हो गया था, 2002 में क्या हुआ, ये इन्होंने रेफरेंडम जो होता है, रेफरेंडम जो है इन्होंने एक हेल्ड किया जिसमें इन्होंने जो है अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन प्रोवाइड करवा दिया. यानी कि 1999 से 2004 तक, यानी कि 5 साल तक ये इनको कोई नहीं हटा सकता. ठीक है, उसके बाद जो पाकिस्तानी मीडिया था और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और जो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट थे, इन्होंने कहा कि जो ये रेफरेंडम था ये किस में बेस्ड था, माल प्रैक्टिसेस यानी कि गंदी प्रैक्टिसेस में. यानी कि इसमें जो है इन्होंने पूरी प्लानिंग करके अच्छी तरह बनाया था. ये कोई इन्होंने इतना अच्छा सोच के नहीं बनाया है, इन्होंने बहुत दिमाग लगा के बहुत गंदा ये चीज़ रेफरेंडम जो है इन्होंने डाला है.
ठीक है। और अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है अमेंड किया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है डियर स्टूडेंट, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो क्या डिसमिस कर सकता है, वो डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता था, ठीक है। वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस, यानी कि कहीं ना कहीं अगर नेशनल असेंबली में कोई रूलर अच्छी तरह काम नहीं कर रहा या फिर कुछ हो रहा है चीज़, तो भी फटाफट उसको उठा के फेंक देता था या फिर उसको हटा देता था, दूसरे को ले आता था, है ना। तो ही कैन चेंज ना द वर्क ऑफ सिविलियन। जो कैबिनेट थी, सिविलियन कैबिनेट, वो किसके द्वारा सुपरवाइज किया जाती थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि परवेज मुशर्रफ ने ही बनाई थी, मिलिट्री ऑफिसर्स को मिला के। तो जो रूलर्स अपॉइंट करवाते थे, मतलब देखो इलेक्शन करवाते थे, वो रूलर्स अपॉइंट करे जनता ने। अब जो रूलर्स हैं वो किसके कंट्रोल में थे, वो कंट्रोल में थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि मिलिट्री ऑफिसर्स के कंट्रोल में। और मिलिट्री ऑफिसर्स किसके कंट्रोल में थे, जनरल परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में, है ना। तो पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा था, इलेक्शन करवा रहा था, वोटिंग भी हो रही थी, लोग इलेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन जो इलेक्टेड रूलर्स थे उनके पास कोई पावर नहीं थी, वो डिसीजन बना ही नहीं सकते थे, बल्कि अगर उनसे कोई बेकार काम हो जाता था उनको निकाल दिया जाता था, है ना। और ये इनका काम जो है सुपरवाइज करते थे मिलिट्री ऑफिसर्स, और मिलिट्री ऑफिसर्स को कंट्रोल करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो हाँ, पावर किसके हाथ में थी, और फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में थी, परवेज मुशर्रफ के पास में और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास में, है ना। तो इससे पता चलता है कि पावर सिर्फ एक ही बंदे के पास है ना। तो हम इस टाइप की गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, है ना। So clearly there are many reasons why Pakistan cannot be called democracy, but let us focus on one of these. Can we say that rulers are elected by the people in Pakistan? Not quite. People may have elected their representative to the National and Provincial Assembly, but those elected representatives were not really rulers. They cannot take the final decision. The power to take final decision rested with army official and with General Pervez Musharraf, and none of them were elected by people. This happened in many dictatorships and monarchies. ठीक है, ये चीज़ें किस में होती है, डिक्टेटरशिप्स और मोनार्की। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, पावर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में होती है, और यहाँ पे भी पावर किसके पास थी, सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही पावर थी, है ना, और उसके मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, है ना। ऐसा तो मोनार्की और डिक्टेटरशिप में होता है, ठीक है। तो दे फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, मतलब ये खाली फॉर्मेलिटी के बेसिस में जो है इलेक्शन करवाते थे। इनका रियल इंटेंशन होना था कि भाई इलेक्शन करवाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स ही जो है मेजर डिसीजन लेंगे पीपल के, नहीं। फाइनल पावर रेस्टेड विद ओनली परवेज मुशर्रफ। तो इलेक्शन खाली फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी के लिए करवाए जाते थे, है ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि भाई अरे हम भी डेमोक्रेसी, सिर्फ इसके लिए, वरना डेमोक्रेसी वो नहीं थी, ठीक है। सो द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. In few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representative. This cannot be called people's rule. This gives us the first feature. और ये first feature क्या है? In the democracy, the final decision making power should be rest with those who are elected by the people. ओके, आई थिंक दिस फर्स्ट फीचर डेमोक्रेसी तो सबको क्लियर हो गया होगा। आपकी एनसीईआरटी बुक समझाती भी बहुत अच्छी तरह है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट। देखो डियर, चाइना में जो है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान की तरह ही, देखो चाइना में जो है डियर इलेक्शन जो है हर 5 साल बाद होते हैं, ठीक है, कंट्रीज की पार्लियामेंट में। अभी तक तो सब डेमोक्रेसी जैसे ही लग रहा है, अभी देखते हैं अंदर अंदर घुस के। कॉल्ड कॉन्गो रेनमिन डेबिया डायू, ठीक है। तो आपको ये पूरा चाइनीज भाषा में लर्न करना नहीं है, इसका हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन होता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, सो द नेशनल पीपल कांग्रेस ऑफ द कंट्री, so the National People Congress has the power to appoint the president of the country. तो नेशनल पीपल कांग्रेस के पास क्या थी, पावर थी कंट्री को, जो कंट्री का प्रेसिडेंट होगा उसको अपॉइंट करने की। तो उसके पास नियरली 3000 मेंबर्स होते थे, ठीक है, 3000 उनके पास मेंबर्स होते थे, इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना,
है ना। अब देखो जो कुछ कुछ मेंबर्स है वो जो है इलेक्टेड होते थे आर्मी द्वारा भी, है ना। बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स टू द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और द एट a smaller party allied to it were allowed to contest election held in 2002 to 2003. The government is always formed by communist party. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है अभी अब ट्विस्ट आया, उसके बाद 3000 मेंबर्स थे जो कि पूरे चाइना में से इलेक्ट होते थे और कुछ कुछ मेंबर्स मिलिट्री द्वारा भी इलेक्ट किए जाते थे, यानी कि आर्मी द्वारा भी इलेक्ट किए जाते थे। बट प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम तब आई जब हमें परमिशन लेनी पड़े चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, है ना। किसी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना था तो उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेनी पड़ती थी। और या फिर अगर कोई स्मॉलर पार्टीज हैं तो उस स्मॉलर पार्टी को जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलाइड होना पड़ता था, यानी कि दोनों की फ्रेंडशिप होनी चाहिए और जो स्मॉलर पार्टीज हैं वो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही उनको आना होगा। तभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उनको परमिशन देती थी इलेक्शन कंटेस्ट करने के। So, before contesting the election, the candidate needs the approval of Chinese Communist Party and only those who are the member of Chinese Communist Party or the 8 smaller party allied to it were allowed to contest elections. और जो गवर्नमेंट है वो हमेशा अभी भी सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही फॉर्म होती है। तो यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी द्वारा इलेक्शन एक ही पार्टी द्वारा हमेशा जो है कहीं ना कहीं चाइना में जो है गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि पावर सिर्फ एक ही पार्टी के पास है ना। अगर पावर दूसरी पार्टीज के पास भी होती तो हम कहते हैं दिस इज डेमोक्रेसी। बट डेमोक्रेसी कैसे है? क्योंकि हर बार सिर्फ एक ही पार्टी फॉर्म हो रही है, यानी कि पावर किसके हाथ में है? सिर्फ एक ही पार्टी के हाथ में, है ना। सो सिंस इट इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे जो है इसने जो है चाइना क्या नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं है। अब देखो चाइना का केस खत्म हो गया, अब आते हैं मैक्सिको। सो सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930 में मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ था डियर स्टूडेंट। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन एवरी 6 ईयर्स। अब ऐसा नहीं है कि मैम सारी कंट्रीज 5 साल बाद करती है, मैक्सिको से ऐसा कुछ नहीं होता डियर स्टूडेंट। बस इलेक्शन हेल्ड करने से मतलब होता है वो आप 6 ईयर्स में करो, 5 ईयर्स में करो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। सो 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, बट अंटिल 2000 every election was won by PRI. Every election was won by party called PRI, Institutional Revolutionary Party. तो अब देखो डियर स्टूडेंट 6 ईयर्स बाद हर बार आप प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते थे और जो कंट्री है कभी भी जो है मिलिट्री डिक्टेटर रूल ऐसे किसी भी चीज़ में नहीं गई। पर 2000 तक 1930 से 2000 तक कितना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है? अबाउट 60 ईयर्स का टाइम डिफरेंस है। इलेक्शन जो था हमेशा एक पार्टी जीतती थी, वो थी PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब देखो PRI के फुल फॉर्म बोलोगे मैम ऐसा क्यों है? बिकॉज PRI की फुल फॉर्म आपकी मैक्सिको की जो लैंग्वेज होती है उसमें होती है पी से स्टार्ट, लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट करके इट इज इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 60 साल तक बिल्कुल जनता का मन चेंज नहीं हुआ, अरे नहीं यही पार्टी अच्छी है, अरे नहीं इसी पार्टी ने अच्छे काम करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिकॉज 60 साल में पार्टी ने बेकार चीज़ें भी करी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि पार्टी बहुत ही अच्छी है कि पार्टी ने अच्छी चीज़ करी होंगी, जनता हटाना भी चाहती होगी पार्टी को। बट आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो पार्टी को हटा नहीं रही थी रूल से? लेट्स सी। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन्स। अपोजिशन पार्टी कंटेस्ट करती थी इलेक्शन बट कभी भी जीत नहीं पाई। क्यों? क्या था ऐसे कारण? द PRI was known to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. Teachers of government school used to force parents to vote for PRI. Media largely ignored the activities of opposition political party except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. तो डिस्ट्रिक्ट होता क्या था? ये जो PRI थी ये बहुत ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स खेलती जो है कहीं ना कहीं इलेक्शंस को विन करने में। क्या क्या चीज़ थी है? सबसे पहले ये क्या करती थी, ये जो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ थे यानी कि जो भी लोग गवर्नमेंट में काम करते थे गवर्नमेंट ऑफिस में, उनसे जो है कहती थी उनकी भाई तुम्हें जो है पार्टी मीटिंग अटेंड करनी है फटाफट, और जो जो काम तुमसे ऑफिसर्स कहेंगे वो सारे काम तुम्हें करने हैं, है ना।
सेकंड क्या था? सेकंड काम था कि जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनसे ये लोग कहते थे कि तुम जो है तुम्हारे क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को फोर्स करो कि भाई आप पीएलआई को ही वोट दो, वरना हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे एंड वॉट एवर। ठीक है। और उसका फिर तीसरा ये चीज़ क्या करते थे? तीसरा ये चीज़ ये करते थे कि डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं जो मीडिया था उस समय, मीडिया जो था, मीडिया को भी इन्होंने अपने हाथ में कर रखा था। मीडिया को भी पैसा वैसा देकर करप्शन करके क्या होता था, मीडिया हमेशा जो है रूलिंग पार्टी के गुणगान करते रहता था। और अपोजिशन पार्टी को ये नहीं कि अपोजिशन पार्टी के अच्छे काम दिखाए और जो गलत काम कर रही है रूलिंग पार्टी उसको दिखाए, नहीं, मीडिया जो है अपोजिशन पार्टी को ही उल्टा क्रिटिसाइज करता था, है ना। उसका फिर डिसीजन उस समय जो है एक और चीज़ करता था पीआरआई पार्टी ये भी करता था कि कभी कभी जैसे जिस दिन वोटिंग होती है डिसीजन, उस दिन आपको एक जगह दी जाती है जहाँ पे वोट होता है ना। तो लास्ट टाइम में यानी कि लास्ट मिनट में जब लोग पहुंचते थे उसी समय जो है पोलिंग बूथ चेंज कर देता था, यानी कि जहाँ पे उनको वोट डालने का जहाँ उनका स्थान था वो चेंज कर देता था। इसकी वजह से लोग वोट डाल ही नहीं पाते थे बिकॉज टाइम ही खत्म हो जाता था, तो इसलिए वोटिंग हो ही नहीं पाती थी। और इस तरह जो है पीआरआई हर बार वोटिंग में जो है जीत जाता था, हर बार इलेक्शन जीत जाता था। ठीक है। तो पीआरआई ने जो है लास्ट सम ऑफ मनी जो है इन्वेस्ट किया कैंपेन ऑफ हिज कैंडिडेट्स। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड above as example of people electing their rulers? Reading these examples we get a sense that we cannot, है ना, बिकॉज इन सब एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि भाई नहीं, ये बिल्कुल अच्छी तरह इन्होंने बिल्कुल इलेक्शन वगैरह नहीं करा है। बिकॉज हम साफ देख रहे हैं कैसी डर्टी डर्टी ट्रिक्स पीआरआई खेलता था इलेक्शन जीतने के लिए, है ना। तो हम इसको ट्रूली सेंस में तो इलेक्शन नहीं कह सकते, है ना। So there are many problems here. In China, the election don't offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. Can we call this a choice? In the Mexican example, people seem really to have a choice, but in practice, they had no choice. There could be way the ruling party could be defeated, even if people were against it. These are not fair elections. ये fair elections ही नहीं है ना। We can just add a second feature of our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. The elections must offer a real choice between political alternatives. And it should be possible for people to use this choice to remove existing rulers if they wish so. So, a democracy must be based on free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. We shall find out more about democratic elections in chapter 3. तो डियर इसमें आपका ये कह रहा है कि भाई सिर्फ इलेक्शन होल्ड कराने से ही आपकी डेमोक्रेसी नहीं हो जाती, यानी कि ये नहीं होता कि भाई आप इलेक्शन होल्ड करा रहे हो तो बस हो गया, नहीं। आप इलेक्शन होल्ड करा रहे हो तो आपको अपने जो आपके पीपल हैं उनको एक रियल चॉइस देनी पड़ेगी ऑल्टरनेटिव्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि भाई आप अपोजिशन पार्टी को किसी भी तरह हराने के लिए कुछ भी हद तक पार कर रहे हो, ये नहीं। आपको अपोजिशन पार्टी को भी उतना ही चांस देना है जितना आप खुद जो है अपना प्रचार कर रहे हो, उतना ही अपोजिशन पार्टी को भी करने दो इक्वल अमाउंट में। सो इसको हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहते हैं। So democracy must be based on free and fair election where those who are currently in power have a fair chance of losing. I hope ये clear हो गया होगा सब लोगों को। So next is we shall be find out more about a democratic elections in chapter 3. Next is one person, one vote and one value. This is the third feature of democracy. So I want all of you people to please sip water. ठीक है। So I am also drinking water right now, so you can also drink water for some break because this will help you to hydrate it. Okay. So dear students, let's read. Earlier we read about how the struggle of democracy was linked to the demand of universal adult franchise. This principle has now come to the accepted again almost all over the world. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? every adult citizen should have one vote irrespective of caste, gender, sex, religion, etc. ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार का होता है। कहीं पे एडल्ट जो है लोगों को 18 साल के बाद दिए जाते हैं वोटिंग राइट, कहीं पे 21 एज, आई डोंट नो डियर स्टूडेंट, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ
रूल्स अगेंस्ट दिस। ओके, तो डियर ये जो है ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने जो है अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट टू वोट था ही नहीं। एंड अभी भी आप लोग अगर देखो तो सऊदी अरेबिया में डियर स्टूडेंट मोनार्की है, ठीक है, एब्सोल्यूट वहाँ पे मोनार्की अभी भी चलती है। एस्टोनिया आपने देखा होगा, एस्टोनिया में जो है क्या होता था डियर स्टूडेंट, जो रशियन माइनॉरिटीज थी ना, वहाँ पे देखो एस्टोनिया हैज़ मेड इट सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। एस्टोनिया एक देश था डियर स्टूडेंट जहाँ पे जो है रशियन माइनॉरिटीज भी रहती थी, बहुत सारी मेजोरिटी रशियन थी, जो मतलब जैसे उनके वहाँ के जो लोग हैं, है ना, उनके वहाँ के लोग हैं एस्टोनिया, अगर उनके जो पूर्वज हैं वो एस्टोनिया से बिलोंग करते हैं या कुछ है तो ऐसा, तो उनको तो राइट टू वोट मिल जाएगा। बट जो रशियन माइनॉरिटीज थी जो उसी देश में रहती है, एंड नाउ दे आर द सिटीजन्स ऑफ एस्टोनिया, दे आर नॉट थिंकिंग दिस, दे आर थिंकिंग दैट दे आर स्टिल बिलोंग्स टू रशिया एंड इफ दे वांटेड टू वोट दे हैव टू स्ट्रगल। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इनको जो है राइट टू वोट मिलता ही नहीं था, किनको, रशियन माइनॉरिटीज को बहुत डिफिकल्टी होती थी। फाइनली नाउ फिजी इज देयर। अब द फिजी का इलेक्ट्रल सिस्टम इन सच अ वे दैट वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन द इंडियन फिजियन। तो इसमें जो है फिजी में जो है क्या होता था, जो इंडिजीनियस फिजी है, क्योंकि रिसेंट जब अंग्रेज वगैरह आ गए थे इंडिया में, तो बहुत सारे जो इंडियंस थे वो बचने के लिए फिजी और जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहाँ चले गए थे, तो वहीं बस गए थे। अब वहाँ पे रजिस्टर जो है कहीं ना कहीं जो एक इंडिजीनियस फिजी यानी कि जो फिजी को ही बिलोंग करता है ना, उसका कहीं ना कहीं क्या होता था, उसकी जो वोट की वैल्यू थी वो ज़्यादा मानी जाती थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजियन। यानी कि इंडियन फिजियन जो इंडिया से जो लोग वहाँ पे फिजी में रहने के लिए गए थे, अब जो है डिस्ट्रिक्ट वो फिजी के ही जो है मेंबर्स हैं, बट कहीं ना कहीं फिजी उनको अपने मेंबर्स फिर भी नहीं मानता है, फिर भी डिस्क्रिमिनेट करता है और जो है उनको राइट टू वोट नहीं देता है, ठीक है, और उनके वोट की वैल्यू जो है उन्होंने कम रखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी that gives us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen should have one vote and each vote should have one value. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी किस में बेस्ड होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, किस में बेस्ड है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो फिर इससे हमें ये पता चलता है थर्ड फीचर कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो है हर एक एडल्ट के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू fourth feature, rules of laws and respect for rights. So Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. तो 1980 में डियर स्टूडेंट क्या हुआ, जिम्बाब्वे को जो है इंडिपेंडेंस गेन हुआ फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल, ठीक है, 1980 में। अब जो है सिंस द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ एक जो है इंडियन लैंग्वेज का शब्द नहीं है, आई थिंक ये जिम्बाब्वे की ही कोई लैंग्वेज का होगा, सो वी नॉट नीड टू बी लुक फॉर इस डेफिनेशन, हमें खाली याद रखेंगे जानू पीएफ, ठीक है। एक पार्टी थी जो कि जो है फ्रीडम स्ट्रगल में जिसने जो है पार्टिसिपेट किया था, तो उनका जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, सो इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। Elections were held regularly and always won by जोनू पीएफ। अब देखो रॉबर्ट मुगाबे उनका लीडर था और जो है कंट्री जब इंडिपेंडेंस गेन कर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि जब से कंट्री को इंडिपेंडेंस गेन हुई है, तो इलेक्शन जो थे हमेशा रेगुलरली होते थे, पर हमेशा जो है जानू पीएफ पार्टी ही जीतती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। ऐसा होता नहीं है कभी कभी जो पॉलिटिकल लीडर बहुत पॉपुलर होता है लोग उसी को वोट देते हैं, राइट। तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे ये भी बहुत पॉपुलर था, बट बहुत ही ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिस जो है यूज़ करता था इलेक्शंस में। कौन कौन सी प्रैक्टिस, ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज हिज पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ओवर द ईयर मतलब जो इनकी पार्टी है इसने इतनी बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया है, इतनी बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके अपने जो राइट्स है अपनी जो पावर है वो बढ़ाने की कोशिश की है, यानी कि प्रेसिडेंट अपनी पावर हर समय बढ़ाते रहता था, ठीक है, हर बार। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्प्टेड। जब भी अपोजिशन पार्टी कोई मीटिंग में बैठती थी या कुछ भी होता था तो उनको हरेस कर दिया जाता था और उनकी जो पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि जैसे पब्लिक प्रोटेस्ट या फिर वो सारी चीज़ें हुई
जैसे कभी कभी क्या होता है, जनता खुश नहीं होती, जैसे किसान आंदोलन आपने देखा होगा, कभी जनता खुश नहीं होती तो आंदोलन में उतर जाती है ना। तो इन डेमोक्रेसी अलाउज अस टू प्रोटेस्ट एंड ऑल, बट यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों को ही इलीगल बना दिया था, यानी कि अगर आप ये करोगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो आप सीधे जेल में जाओगे, ठीक है। देयर वर लॉज दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट, और बहुत सारे लॉज भी थे जो कि जो है कहीं ना कहीं लिमिट करते थे राइट टू क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे लॉ बनाए गए थे कि आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते हो, जबकि डेमोक्रेसी में आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो अगर आप उससे खुश नहीं हो, ठीक है। टेलीविजन एंड रेडियो वर ऑल्सो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, यानी कि टेलीविजन और रेडियो में भी जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और ये लोग सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी का ही गुणगान करते रहते थे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर ऑल्सो बट गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु वर अगेंस्ट इट, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी होया करते थे, वरना ऐसा आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जिनको जर्नलिज्म का सच में शौक होता है और वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं विदाउट बीइंग डिपेंडेंट अपॉन समवन, है ना, तो खुद अच्छी न्यूज़ जो है पहुंचाते हैं। तो ऐसे जो जर्नलिस्ट थे इनको जो है हरेस कर दिया जाता था और उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते थे, और गवर्नमेंट जो है कोर्ट जजमेंट अगर उनके अगेंस्ट है तो उसको भी इग्नोर कर देती थी, है ना, और जो है जजिस को बहुत प्रेशराइज भी करती थी कि हमारे हमारे अगेंस्ट डिसीजन मत दो, ठीक है। ही वॉज फोर्स आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017, और 2017 में जैसे तैसे जजेस वगैरह कोर्ट वगैरह मिल मुल के इसको जो है कहीं ना कहीं जो आपका जिम्बाब्वे है रॉबर्ट मुगाबे, इसको जैसे जैसे बाहर निकाला 2017 में, इसका सामान वामान सब पैक करके आई थिंक जेल में डाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट अ पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर्स इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशिएंट, पॉपुलर गवर्नमेंट कांट बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक इफ दे विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी। ऐसा हो सकता है ना जैसे कि पॉपुलर गवर्नमेंट है, आपने कहा अरे हाँ ये तो बड़ा अच्छा रूलर है, हाँ इसी को देते हैं वोट, क्या पता समय में वो आपकी जो है ये काइंडनेस या फिर जो आपके सीधापन है इसको यूज़ करके वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने लगे, वो अपनी पावर इंक्रीज करने लगे, वो एज अ डिक्टेटरशिप आपकी गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप में ले जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है डीएस में, है ना। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट लुक एट द इलेक्शन बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर the election. There should be sufficient room for normal political activities including political opposition in the period before election. This requires that the state should respect some basic rights of citizens. They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form association, to protest and take other political action. Everyone should be equal in eyes of laws. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. तो डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी पॉपुलर गवर्नमेंट है ये तो भाई कुछ भी कर सकती है, ऐसा तो ना होता है। पॉपुलर गवर्नमेंट तो क्या हो गया, दे विल फॉलो द रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। सिर्फ इलेक्शन में ध्यान देने से ही डियर स्टूडेंट कुछ नहीं होता है, हमें जो है इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले क्या क्या चीज़ होती है इसमें भी ध्यान देना पड़ता है ताकि हम लोग अपना वोट राइट पर्सन को जो है दे सकें, ठीक है। We shall read more about those in rights in chapter 5. Similarly, there are some conditions that apply to the way of a government is run after election. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultation. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by constitution and law. Each of these is accountable and not only to the people but also to other independent officials. We shall read more about this in chapter 4. तो जैसे इसमें से इतना बताया है कि भाई क्या हो गया, अगर आपने इलेक्शन चूज़ करा और एक गवर्नमेंट को अपॉइंट करा, गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि अगर वो एक बार इलेक्ट हो गई, अगर वो एक बार रूलिंग पार्टी में आ गई तो कुछ भी करे, है ना। दे कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। दे कैन ओनली डू दोज थिंग्स जो जिसका अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दिया है ना। सो दे हैव टू work according to the constitution, right? They cannot do anything, है ना।
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ फीचर, फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो डियर स्टूडेंट इस तरह जो है हमने यहाँ पे 4 फीचर डेमोक्रेसी के पढ़ लिए हैं। अब समरी डेफिनेशन में आ जाते हैं। Let us sum up decisions so far we have discussed with simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. We have found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. Through a series of examples, we worked out 4 features of democracy as form of the government. Accordingly, democracy is a form of government in which rulers elected by people take all the major decisions. Elections offer us choice and fair opportunities to people and change the current rulers. This choice and opportunities available to all people on an equal basis, and exercise of these choice lead to a government limited by basic rules of constitution and citizens right. तो ये सारी वही चीज़ें जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वाई डेमोक्रेसी। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। सम डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। Yes, dear students, so it is written, an argument broke out in Madame Lindau's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. Yolanda, we live in a democratic country. All over the world, people want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice thing about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? Now, Tankini says, but Lindau ma'am has said we should not accept something just because it is famous, just because everyone else accepts it. Isn't it possible that everyone is following a wrong path? ठीक है, तो ये टांकिनी कहती है बिकॉज इनकी मैम ने जो है कहा कि हमें कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस. वी हैव टू सी ऑल द demerits and merits of it, right? So Jenny says, yes, it is actually a wrong path. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. तो अब ये जेनी कहती है कि हाँ हम लोग रॉन्ग पाथ ही फॉलो कर रहे हैं बिकॉज डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में लाई क्या 60 डिकेड से हम लोग डेमोक्रेसी कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारी कंट्री में पॉवर्टी तो है ही, राई बांग. बट what has democracy got to do with it? Do we have poverty because we are democratic or do we have poverty despite being a democracy? तो ये राइबांग अच्छा चीज़ कहते हैं कि डेमोक्रेसी को क्या करना है इस चीज़ से. हमारे पास पॉवर्टी है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं या फिर पॉवर्टी फिर भी है जबकि हम डेमोक्रेटिक हैं. ठीक है, अब जैनी कहती है वट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस. द पॉइंट इज दैट वी कैन नॉट बी बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos, इन इंस्टेबिलिटी, करप्शन, हिपोक्रेसी जिसको हम कैसे हैं क्राइसी कहते हैं, पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्फ हु केयर फॉर कंट्री. सो जैनी बिल्कुल सही है. जैनी कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है उससे. बात तो एक ही है कि डेमोक्रेसी में इतनी लड़ाई झगड़ा होते रहता है, करप्शन है इतना, कोई भी किसी का ध्यान नहीं रखता है, ये सारी चीज़ें. फिर जो है पॉइमॉन कहता है सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड. गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इन्वाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री. सो क्या हम किंग्स को इन्वाइट करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उन्होंने जो हालत की है ना इंडिया की, आई थिंक उससे आप सभी लोग परिचित हो बिकॉज क्लास 8th में आई थिंक इट वॉज मॉडर्न हिस्ट्री एंड यू हैव रेड अबाउट सम ब्रिटिश ऑफिशियल्स आई गेस. So next is Rose. I don't know. I think what this country need is a strong leader. Someone who does not bother about elections and parliament. Who leader should have all the powers. He should be able to do whatever he is needed in country's interest. That alone can improve corruption and poverty from this country. तो इसमें ये तो dictatorship हो गई because एक लीडर जिसके पास सारी पावर है, जिसको इलेक्शंस का कुछ मतलब नहीं है, पार्लियामेंट से कुछ मतलब नहीं है, उसके पास सारी पावर है और वही अलोन डिसीजन ले रहा है, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई है ना. समवन शाउटेड दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप. होई व्हाट इफ पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ.
Rose, I am speaking only of the honest, sincere, and strong leader. Hoi, but that is not fair. You are comparing a real democracy with an ideal dictatorship. We should compare an ideal with an ideal, and the real with the real. Go and check the record of dictators in real life. They are the most corrupt, selfish, and brutal. It is just we don't get to know about this, and that what's worse, you can't even get rid of them. तो डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा डिक्टेटरशिप तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है. आपको दूर से अच्छी लगेगी, आप कहोगे अरे वाह डिक्टेटरशिप में डिसीजन भी फटाफट चल रहे हैं, सब चीज़ सही हो रही है ना, डिक्टेटरशिप ज़्यादा अच्छी है. बट ऐसा नहीं है रियलिटी में, है ना. सो नाउ लेट्स कम टू मैडम. यस, मैडम लिंडो वॉज लिसनिंग टू द डिस्कशन with interest. Now she stepped in. I was delighted to see you all arguing so patiently. I don't know who is right and who is wrong. That is for you to settle. But I did feel that you all wanted to speak your mind. You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. Would you be able to do that in country that is not democratic? Is it the good argument for democracy? तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट नहीं होती है, वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ डेमोक्रेसी कोई भी चीज़ वाली गवर्नमेंट के खिलाफ बोलो तो आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है. लेकिन डेमोक्रेसी में आपको मौका दिया जाए, डेमोक्रेसी में आप आंदोलन कर सकते हो, डेमोक्रेसी आपको एक बहुत आइडियल मेथड प्रोवाइड करती है ना. तो अभी हम दोनों चीज़ें बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं और आर्ग्यूमेंट जो कि डेमोक्रेसी के लिए होते हैं, है ना. नाउ सम डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेट्स सी. सो लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी यानी कि डिस्ट्रेंट क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. डिस्ट्रेंट कहीं ना कहीं लीडर जो है चेंज होते रहते हैं. तो क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, एक लीडर चेंज हुआ दूसरा लीडर है तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सेटल होने में, थोड़ा टाइम उसको लगेगा कि चलो ऐसे डिसीजन बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं ना, तो इट विल टेक सम टाइम टू सेटल, है ना. तो चेंज होते रहते हैं, इससे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और डेवलपमेंट्स नहीं हो पाते हैं जल्दी. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. डेमोक्रेसी में डिस्टेंट जो है पॉलिटिकल पावर प्ले यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन होता है. आपने देखा होगा एक पार्टी चाहती है कि हम जीतें, दूसरी पार्टी चाहती है मैं जीते, है ना. लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, कोई भी मोरालिटी के लिए स्कोप नहीं, कोई भी दूसरों के बारे में चिंता नहीं करता. सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज. और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत टाइम लगता है. आपने देखा होगा कोर्ट के डिसीजन 3-4 साल तक वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, है ना. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 3-4 साल बाद भी वो डिसीजन नहीं देते, 10 साल लग जाते हैं कोर्ट के डिसीजन में, है ना. तो डेमोक्रेसी में डिले यानी कि लेट तो बहुत होता है, ठीक है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, दिस लीड टू बैड डिसीजन. इलेक्टेड लीडर्स इनको भी अपने कभी कभी क्या होता है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से लड़ते हैं इलेक्शंस. तो कभी कभी क्या होता है, किसी ऐसे लीडर को जो है लोग चुन लेते हैं जिसको जो है कहीं ना कहीं एक जगह के बारे में तो बहुत अच्छी तरह पता है. सपोज मान लो गुजरात से एक लीडर खड़ा हुआ और एक लीडर जो है आपका सपोज मान लो गुजरात में जो है एक अहमदाबाद प्लेस है और एक गांधीनगर, एक अहमदाबाद है आपकी प्लेस, ठीक है. और एक मतलब डिफरेंट प्लेसेस होती है डिस्टेंट. सपोज मान लो मध्य प्रदेश में एक भोपाल है, इंदौर है, ठीक है. अब देखो भोपाल में सपोज मान लो एक लीडर उठा है और इंदौर में एक लीडर उठा है, ठीक है. तो सपोज मान लो मतलब कहीं ना कहीं इंदौर में एक लीडर और उठा है जो कि भोपाल का रहने वाला है, तो उसको भोपाल के बारे में तो अच्छी तरह पता है लेकिन इंदौर के बारे में नहीं होगा. अब सपोज मान लो इंदौर के लोगों ने उस लीडर को वोट कर दिया जो कि भोपाल को अच्छी तरह से जानता है, भोपाल से बिलोंग करता है लेकिन इंदौर से इलेक्शन लड़ रहा है. तो फिर वो लीडर इंदौर का जो है रिप्रेजेंटेटिव तो बन जाएगा, पर क्या उसे अपने पीपल के बारे में अच्छी तरह पता है, नहीं पता है. उसको अपने लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है, तो इससे क्या होगा, वो गलत डिसीजंस ले लेगा. डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. डेमोक्रेसी जो है करप्शन को लीड करती है और ये जो है इलेक्टोरल कंपटीशन में बेस्ड है. यानी अभी भी क्या होता है, इलेक्शन जीतने के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, थोड़ा बहुत जैसे गरीब लोग हैं तो उनको फ़ोन दे दिया, कुछ मतलब जैसे फ़ोन दे दिया कोई मतलब कंपनी का, उनसे कहा कि भाई हमें ही वोट देना है ना, ऐसे ऐसे करके वो वोट खरीदती हैं, है ना. कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं इससे जो है करप्शन होता है.
डेमोक्रेसी में बहुत करप्शन है डियर स्टूडेंट. ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. ऐसा होता नहीं है कि जैसे गरीब लोग हैं बेचारे, उनको इतना पता भी नहीं कि डेमोक्रेसी में कैसे इलेक्ट करते हैं, क्या लगता है. जैसे डेवलप कंट्रीज हैं यूएसए वगैरह, उसमें तो सब लोगों को पता है, बिकॉज ऑल आर द वेल एडुकेटेड लोग, है ना, उनको सब पता है कि भाई क्या है, किसको वोट देना है. बट हमारी अनडेवलप कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडिया में मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इंडिया इज नॉट डेवलप्ड, इंडिया इज ऑल्सो डेवलप्ड बट नॉट इन दैट एक्सटेंट. तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑर्डिनरी लोग हैं, तो उनको नेता लोग क्या करते हैं कि भाई थोड़ा पैसा दे दिया या कुछ कर दिया है ना, या फिर मोबाइल फ़ोन दे दिए वगैरह वगैरह, और कहा कि भाई हमें ही वोट देना, वो लोग तो वोट दे देंगे, है ना. उनको नहीं पता विच गवर्नमेंट इज़ गुड एंड विच गवर्नमेंट इज़ बैड. ठीक है. So are there some other argument against democracy that you can think of? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? Clearly, democracy is not a magical solution for all the problem. ऐसा तो है नहीं जैसे कि डेमोक्रेसी आ गई बस अब तो भाई मैजिकल प्रॉब्लम, मैजिकल सॉल्यूशन आ गया, अब तो हमारे देश का सारी प्रॉब्लम दूर, ऐसा नहीं है ना. It has not ended poverty in our country and in many other parts of the world. A democracy is a form of government that ensures that people take their own decision. This does not guarantee that their decision will be good. तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है डिजिटल गवर्नमेंट की जो सिर्फ इंश्योर करती है लोगों को कि लोग जो है डिसीजन लें. अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है जो डिसीजन लेंगे वो हमेशा अच्छे ही होंगे, है ना. कभी कभी अनजाने में या गलती में गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं. सिर्फ डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी जो है प्रोवाइड करती है लोगों को कि भाई आप डिसीजन अपने खुद लो. इसका वाला ये थोड़ा ना होगा कि जो डिसीजन वो लोग लेंगे वो गुड ही होंगे. पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग involving the people in these decisions does lead to delays in decision making. It is also true that in democracy lead to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decision and affect the democracy's गवर्नमेंट एफिशिएंसी. ठीक है, तो इससे जो है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी खराब हो सकती है. These arguments show that democracy of a kind that we see may not be ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? ठीक है, तो क्या डेमोक्रेसी जो है जो गवर्नमेंट के अदर फॉर्म है उनसे बेटर है क्या, और उनसे बेटर है तो किन 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 बेसिस में उनसे बेटर है, तो ये हम डिस्कस करेंगे. व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो लेट्स रीड आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. तो डियर स्टूडेंट, मेरे को लग रहा है कि आज का सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो हमारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस तो इसमें डिस्कस नहीं हो पाएंगे, बट कोई बात नहीं, इसके इमीडिएटली बाद एक नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आप लोग क्लिक कर दीजिए. उस पार्ट में मैंने इसका जो है क्वेश्चन आंसर्स और जो है क्या करूँगी सारे जो है इसका जो है जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में कहा था वो डिस्कस करवा दूँगी, बिकॉज ऑलरेडी 56 मिनट्स हो गए हैं, तो टाइम की तो शॉर्टेज है ही, क्योंकि आपको पता है कि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपके पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे. तो इसलिए मैं वीडियोस को एक थोड़े पार्ट्स में बांट देती हूँ. तो पार्ट 1 इज दिस, पार्ट 2 ऑफ सिविक्स रिविजन विल of NCERT solution and extra questions. So, China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. Yet, India did not have a famine of kind China had. तो अब देखो डिस्टेंट, चाइना में ना फेमाइन आया था एक बहुत ज़्यादा भयंकर, वो 1958 में आया था 1961 तक. और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन इस फेमाइन में रिकॉर्डेड डेटा कितने लोग मरे थे वो था 3 करोड़. सो रियलिटी में कितने लोग मरे होंगे इसका आप लोग हिसाब भी नहीं लगा सकते, है ना. लेकिन इंडिया की भी उस समय उसी तरह की कंडीशन थी. इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी चाइना से बेटर नहीं थी, चाइना के लगभग बराबर या चाइना से कम ही थी, क्योंकि इंडिया ने भी उसी समय थोड़ा समय होता है इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन करे हुए, है ना. तो इंडिया की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, है ना. लेकिन इंडिया ने इस टाइप का फेमाइन फेस नहीं करा. फेमाइन मतलब क्या होता है बताओ. फेमाइन मतलब होता है अब भूख से मर जाना, या फिर खाने के जो है खाना नहीं होना, है ना. लोगों के पास खाना नहीं था, लोग स्टार्व कर रहे थे हंगर की वजह से. हंगर की वजह से मतलब कहीं ना कहीं
उनकी मौत हो रही थी, है ना। क्यों नहीं हुआ ये जो, हाँ, इंडिया में क्यों नहीं हुआ इस टाइप का फेमाइन? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन बिहाइंड वॉज इकोनॉमिस्ट थिंक दैट, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ऐसा सोचते हैं कि रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन टू कंट्रीज, इसका रिजल्ट है क्योंकि दोनों कंट्रीज में डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज थी। एक कंट्रीज में सिर्फ एक पार्टी रूल करती थी, दूसरी कंट्रीज में देयर वर मेनी अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो, है ना। So the existence of government in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that Chinese government did not. क्योंकि existence of डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी तो पीपल जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट कर सकते थे, अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर सकते थे, बाहर आंदोलन कर सकते थे कि भाई हमारे पास खाना नहीं है, वो नहीं है। और अगर गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्स नहीं करती तो पॉलिटिकल पार्टी जो क्या करती, पॉलिटिकल पार्टी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती, और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को मेजर लेने पड़ते फूड स्कार्सिटी के अगेंस्ट। दे हैव टू प्रोवाइड फूड टू द पीपल, राइट। सो इससे क्या हुआ, इंडिया में जो है फटाफट फूड स्कार्सिटी के अगेंस्ट एक्शन लिया गया। पर चाइना में क्योंकि डेमोक्रेसी थी नहीं, है ना, तो इसमें जो है चाइना की गवर्नमेंट ने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, और जो है इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई, ठीक है। They point out that no large-scale famine has ever taken place in independent and a democratic country. If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people have not died in this famine. क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अपोजिशन पार्टी चाइना को क्रिटिसाइज करती है, कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज करती, कहती कि भाई आपसे ये नहीं हो रहा है, फूड नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ध्यान देती पीपल पर, और वो क्या करते हैं, वो फूड स्कार्सिटी के लिए फूड प्रोवाइड करवाते। बट क्योंकि चाइना में कोई डेमोक्रेसी थी नहीं, पावर सिर्फ एक पार्टी के हाथ में थी, तो उन्होंने ऐसा कोई एक्शन लिया ही नहीं, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से वहाँ पे फेमाइन हो गई, यानी कि वहाँ पे बहुत लोगों की हंगर की वजह से स्टाविंग जो बहुत सारे लोग थे, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई, ठीक है। This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government, क्योंकि democracy respond करती है people की need में। It is a more accountable form of government because it responds to people need, ठीक है। So democracy is better than any other form of the government in responding to the needs of the people. A democratic government may result and can respond to people's need, but all it depends on, सॉरी डियर स्टूडेंट, थोड़ा डिस्टर्बेंस होने की वजह से, क्योंकि किसी का कॉल आ गया था, तो इसलिए मेरे को बीच में जो है वीडियो पॉज करनी पड़ी। बट लेट्स कंटिन्यू नाउ। सो यस, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे कि डेमोक्रेसी जो है बेटर गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि वो पीपल की जो नीड होती है उसमें फटाफट रिस्पॉन्स करती है ना। जो भी लोगों को दिक्कत है तुरंत लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, तो डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं उनकी जो नीड्स है उसमें तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी, है ना। अदरवाइज द अपोजिशन पार्टी कैन क्रिटिसाइज देम, द मीडिया कैन क्रिटिसाइज देम, राइट। A non-democratic government may and can respond to people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule. If rulers don't want it to, they don't have to act according to the wishes of people. A democracy requires the rulers have to attend the needs of the people. A democratic government is better form because it is more accountable form of गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बेटर गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि वो मोर अकाउंटेबल, यानी कि वो मोर रिस्पॉन्सिबल है टूवर्ड्स द पीपल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, there is another reason why democracy should be better, why democracy should lead to better decision than any other non democratic government. अब इसका रीज़न क्या है कि डेमोक्रेसी जो है बेटर डिसीजन लेती है एज कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी किस में बेस्ड है, कंसल्टेशन और डिस्कशन। बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं। डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पीपल। डेमोक्रेटिक डिसीजन जो भी लिया जाता है इसमें बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं। डिस्कशंस एंड मीटिंग्स, व्हेन अ मेंबर और नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। तो व्हेन बहुत सारे लोग बोलेंगे तो बैठेंगे तो सम कैन टेक आउट द मिस्टेक इन दिस डिसीजन, अदर्स कैन ऑल्सो टेक आउट, सम कैन सजेस्ट सम अदर डिसीजन, है ना। तो दिस टेक्स टाइम, but there is a big advantage in taking time over importance of decision. This reduces the chances of rash or irresponsible decision. Thus, democracy improves the quality of decision
मेकिंग। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, दिस इज रिलेटेड टू थर्ड आर्ग्यूमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कैसे प्रोवाइड करती है? इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। These differences particularly sharp a country like us which has an amazing social diversity। तो कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट्स, हर एक सोसाइटी में जो है बहुत सारे डिफरेंस ओपिनियन होते हैं लोगों के, मतलब कोई लोग के कुछ ओपिनियन होता है, कोई लोगों का कुछ होते हैं ना, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प, ठीक है, इन अ कंट्री लाइक आर्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। People belong to different regions, speak different languages, practice different religion and have different castes. They too look at a world very differently and have a different preferences. The preferences of one group can clash with those of other groups. How do we resolve such conflict? The conflict can be resolved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its term and other will have to accept that। ठीक है, तो मतलब ब्रूटल पावर से सॉल्व होता है। ठीक है, सो बट दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। Different groups may not be able to live together for a long such way. Democracy provides the only peaceful solution to the problem. डेमोक्रेसी से पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ऐसा तो होना है कि डेमोक्रेसी जो है बिल्कुल अच्छा परमानेंट विनर है, या फिर वो जो है बहुत ही अच्छे डिसीजन ले रही है, बहुत अच्छी तरह कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करा रही है। वो सिर्फ पीसफुल मेथड प्रोवाइड कराती है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने के। ठीक है, नो वन इज परमानेंट लूजर। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव with one another peacefully in a diverse country like India. Democracy keep our country together। ठीक है, तो डियर ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स में। So these three arguments were about effects of democracy in quality of government and the social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. It is about democracy does to the citizens. Even if democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than other forms of government. Democracy enhances the dignity of citizens. As we have discussed above, democracy is based on political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as rich and educated. People are not subject of rulers; they are the rulers themselves. Even when they make mistakes, they are responsible for their कंडक्ट। तो डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है इनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। कैसे? क्योंकि डेमोक्रेसी जैसे कि आपको पता है किस में बेस्ड है, इक्वालिटी में बेस्ड है ना, पॉलिटिकल इक्वालिटी में। तो वो क्या रिकॉग्नाइज करती है, वो जो पुअरेस्ट है और लीस्ट एडुकेटेड है उनका भी सेम स्टेटस होता है एज रिच एंड एडुकेटेड। पीपल जो है रूलर्स के सब्जेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो खुद ही रूलर होते हैं, और अगर वो कोई मिस्टेक करते हैं तो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके कंडक्ट के। ठीक है, तो फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अब देखो स्टूडेंट, डेमोक्रेसी जो है बेटर इसलिए है क्योंकि वो अलाउ करती है उसकी खुद की मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। ठीक है, एज वी हैव सो अबव, देयर आर नो गारंटीज विच दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड बाय डेमोक्रेसी। ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं कि डेमोक्रेसी कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकती है ना। डेमोक्रेसी कैन डू मिस्टेक्स, सो नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट can guarantee that. The advantage in democracy is that such mistake cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction. Either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed. This cannot happen in non-democratic government. तो डिस्टन जैसे कि हमने देखा कि कोई भी गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक नहीं होगी, है ना। तो लेकिन डेमोक्रेसी की मेन बात क्या है, ये जो गवर्नमेंट है
कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये जो है गारंटी नहीं करती है कि भाई मिस्टेक हमसे होगी नहीं, है ना। अब देखो डेमोक्रेसी का एडवांटेज ये है, डेमोक्रेसी का एडवांटेज ये है कि अगर वो मिस्टेक करे तो वो हिडन नहीं रहती है, वो लोगों के सामने आती है और लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो या तो अपने रूलर्स को चेंज कर देंगे या फिर रूलर्स अपने डिसीजंस को चेंज कर देंगे, है ना। तो दिस कैन हैपन इन डेमोक्रेटिक कंट्री ओनली, नॉट इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमने सारे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी देखे। सो नाउ लेट अस, अब हम लोग फटाफट डियर स्टूडेंट सम अप कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेट अस सम अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज़ द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम, but it is clearly better than any other alternative that we know. It offers the better chances of good decision. It is likely to respect people's own wishes and allows different kind of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows the way of correcting its mistake and offers more dignity to citizens. That is why democracy is considered the best form of गवर्नमेंट। सो आई होप डिस्टेंट ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा मजा आया डिस्टेंट ये सब कवर करने में। अब आते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ का, यानी कि आपकी क्या कहते हैं सिविक्स की बुक का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट अस रीड ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in the limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimal features of democracy must have. तो ये जो चीज़ें जिसमें अभी तक हमने पढ़ी, ये तो इसलिए ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर एक कंट्री को डेमोक्रेसी होना है तो उसके पास कम से कम क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, है ना, डेमोक्रेसी कहलाने के लिए। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी takes in our time is that of the representative democracy. और सबसे कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी की जो हमारे टाइम पे है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि हम लोग खुद नहीं जाते डिसीजन बनाने, हम जो लोगों को इलेक्ट करते हैं वो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उसके अगेंस्ट डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। So we are following representative democracy. ठीक है, you have already learned about this in previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decisions on the behalf of people. Even if the majority does not rule directly, majority of people rule through their elected representatives. ठीक है, दिस बिकम्स, क्यों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ही लोग जो है अपना डिसीजन या फिर अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये इसके भी दो कारण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, व्हाई द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, है ना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो आप लोग क्या लिख के आओगे आंसर, है ना। तो दो रीज़न जो आपकी बुक में दिए डियर स्टूडेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जो कि आप लिख के आ सकते हो, है ना। सो ये क्वेश्चन बनता है आपका, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, वाई द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, मैंने बीच बीच में क्वेश्चन भी बता दिया आपको, ताकि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इसमें वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टेड डिसीजन। ठीक है, अब देखो मॉडर्न डेमोक्रेसी में बिकॉज इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, है ना, क्योंकि एक देश इतना बड़ा है, आप सबको तो आप एक जगह पार्लियामेंट में फिक्स तो नहीं कर सकते ना, इतने सारे लोग फिट भी नहीं आ सकते, है ना। तो इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड कलेक्टिवली टेक डिसीजन। ठीक है, सो नेक्स्ट है, इवन इफ दे कुड, अगर ऐसा हो भी क्या पॉसिबल, द सिटीजन डज नॉट हैव दैट टाइम और डिज़ायर ऑफ स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन। अब इतना टाइम होता नहीं है किसी के पास, कभी किसी को कहीं शादी वादी में जाना है, कभी किसी को कहीं काम में जाना है, तो सबके पास इतना टाइम तो होता नहीं कि सब बैठ के जो है डिसीजन लें, है ना। सो दिस गिव्स अस अ क्लियर बट अ मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. This
Clarity help us to distinguish between democracies from a non-democracies, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. इट डज नॉट, लेकिन हमें ये डिस्टिंग्विश करने में ये हमें डिस्टिंग्विश ये नहीं अलाउ करती है कि भाई हम डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी से डिस्टिंग्विश करें. इट डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट. फॉर दिस वी नीड टू टर्न ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. इसके लिए हमें जो है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ देखना पड़ता है. समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन गवर्नमेंट. कभी कभी डिजिटल हम लोग डेमोक्रेसी को जो है कहीं ना कहीं, देखो डिजिटल इन्होंने अभी अभी एक लाइन रखी थी, इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट. फॉर दिस वी नीड टू टर्न द ब्रॉडर मीनिंग. इसके लिए हमें ब्रॉडर मीनिंग समझनी पड़ेगी. ठीक है, तो समटाइम जो है हम डेमोक्रेसी का जो है इस्तेमाल जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट के लिए, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली. वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट टुगेदर अराइव एट आंसर्स. ठीक है, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर. तो डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं हम ऐसा घर में भी क्या कहते हैं करते हैं. जैसे सब लोग साथ में बैठे हैं, साथ में डिसीजन ले रहे हैं ना, और सबके डिसीजन की एक वैल्यू है. तो घर में भी हम लोग डेमोक्रेटिक फैमिली डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं. आई डोंट लाइक टीचर हु डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास. आई वुड लाइक टू हैव दोज टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट. यानी कि जो टीचर्स भाई क्वेश्चन नहीं पूछने नहीं देती है, हमारी टीचर मेरे को अच्छी लगती है ना. सो कहीं ना कहीं डिजिटल हम लोग अपना व्यू जो है बोल रहे हैं ना. वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन द पार्टी. हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? So these way of using the word democracy go back to its basic sense of a method taking decision. Democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decision. यानी कि डेमोक्रेसी डिसीजन जो है डिसीजन क्या इन्वॉल्व करता है? कंसल्टेशन एंड द कंसेंट ऑफ दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन. यानी कि जिनको जो है डिसीजन से प्रॉब्लम है उनका वो लेना है ना, कंसल्टेशन या फिर कंसेंट. ठीक है, तो दोज हु आर पावरफुल हैव सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल. This can those who are not powerful have same say taking decision as those who are powerful. This can apply to the government or a family or any other organization. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि अप्लाई हम लोग कर सकते हैं कोई भी स्पेयर ऑफ लाइफ. ठीक है dear students, sometimes we use word democracy not to describe any existing government but to set up the ideal standard that all democracies must aim to be. है ना, कभी कभी हम लोग जो है डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हैं दिस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बल्कि जो है आइडियल स्टैंडर्ड जो है डेमोक्रेसी को एम करना चाहिए उसके लिए. ठीक है, जैसे ट्रू डेमोक्रेसी विल नेवर कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू द बेड. यानी कि जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा. ठीक है, तो डिसीजन तभी ट्रू डेमोक्रेसी आएगी. है ना, इसके लिए इन अ डेमोक्रेसी इवन एवरी सिटीजन मस्ट एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग. फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट. है ना, इक्वल डिसीजन मेकिंग में भी होना चाहिए ये सारी चीज़ें. है ना, एवरी सिटीजन टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट. तो यहाँ पे इफ़ वी टेक आइडियल सीरियसली, अगर हम इन सारी चीज़ों को सीरियसली लें तो फिर वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं रह जाएगी डियर स्टूडेंट जो डेमोक्रेटिक है. क्योंकि भाई इन्होंने कहा है पोवर्टी नहीं होनी चाहिए, हंगर नहीं होना चाहिए, और ऐसी सारी कंट्रीज में डियर स्टूडेंट ऐसा होता है. कोई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं जिनके पास खाना नहीं होता, वो नहीं होता, और गवर्नमेंट भी प्रोवाइड नहीं कर पाती. है ना, तो क्या सारी कंट्री जो भी वर्ल्ड में इतनी सारी है वो डेमोक्रेटिक नहीं है? डेमोक्रेटिक है बट दे आर नॉट आइडियल डेमोक्रेसी. है ना, तो अगर हम इन आइडियल्स को सीरियसली लें तो इसका मतलब कोई कंट्री जो है डेमोक्रेटिक रह ही नहीं जाएगी वर्ल्ड में. है ना, yet an understanding of democracy as an ideal reminds us why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. Minimal यानी कि वो डेमोक्रेसी जिसके पास कम से कम ये सारे फीचर तो होने ही चाहिए डेमोक्रेसी बनने के लिए.
और आइडियल डेमोक्रेसी वो तो अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में और भी ज़्यादा अच्छे काम हो रहे हैं, वो इसको आइडियल बना रहे हैं, है ना. In this book, we do not deal much with this expanded notion of democracy. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. Next year, you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life, and that democracy can take many forms. There can be various ways of taking decisions in a democratic manner. As long as basic principles of consultation on an equal basis is accepted, the most common form of democracy is today's word is ruled through people's elected representatives. We shall read about that in chapter 3. But if the community is small, there can be other ways of taking democratic decisions. All the people can sit together and take decisions directly. This is how Gram Sabha should work in a village. ठीक है. तो डियर ये सब चीज़ें इसमें लिख रखी हैं. ठीक है, इसको भी रीड कर लेते हैं. दिस ऑल्सो मेंट दैट नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, कोई भी कंट्री जिसमें परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है. तीस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए, ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कंडीशन है. आपको डेमोक्रेसी अगर अपने को बताना है तो ये सारी कंडीशन तो क्वालिफाई होनी चाहिए. ठीक है, दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी. लेकिन ये एक चीज़ को आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाती है. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. What we do as decisions can make difference to making our country more or less democratic. This is the strength or weakness of the democracy. The faith of the country depends not just on what rulers do, but it also depends what we as citizens do. इसमें डेमोक्रेसी में डिसीजन सिर्फ इतना ही नहीं होता कि भाई जो रूलर कर रहा है वही चीज़ है. आप लोगों को, पीपल को भी एक इक्वल अमाउंट ऑफ रोल प्ले करना पड़ता है डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए. दिस इज वॉट वी हैव डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म. Other forms of government like monarchy, dictatorship, or one-party rule do not require all citizens to take part in politics. But हमारे डेमोक्रेसी में सारे सिटीजन्स को भी पॉलिटिक्स में इक्वल अमाउंट जो है क्या कहते हैं रोल प्ले करना पड़ता है. ठीक है. सो इन फैक्ट मोस्ट नॉन गवर्निंग गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन डेमोक्रेटिक politics, but democracy depends on active political participation by all the citizens. That is why we study democracy must be focused on democratic politics. तो जैसे इस तरह जो ये चैप्टर है पूरा होता है, बिकॉज टाइम बहुत हो चुका है. तो हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर और इसके बाकी चीज़ें दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.